دھواں چھوڑتی گاڑیاں زندگی کے لیے خطرہ بن گئے۔ ملتان آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہری سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں زندگی کے لیے خطرہ بن گئی۔ ملتان آلودہ ترین شہروں میں سب سے پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہری سانس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ مناظر ہیں ملتان کی سڑکوں کے، جہاں صبح سے شام تک انفٹ ویڈا بسیں شہریوں کی زندگیوں میں زہر گھول رہی ہیں۔ ملتانیوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اسموگ کے تدارک کے لیے عام گاڑیوں کا چلان کر رہی ہے، لیکن 100 سے زائد دھواں چھوڑتی ویڈا بسوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ کرتے ہیں تو میٹرو، یہ جو بس منی میٹرو ہے، اس کا بہت زیادہ دھواں ہے جو کہ لوگوں کے لیے سانس کی بیماری بن رہا ہے۔ ویسے ماحول اتنا آلودہ ہے، اس میں یہ آلودگی تو مزید زیادہ جو ہے لوگوں کو بیمار کرے گی۔ ایسے حالات چل رہے ہیں، مہنگائی کے ساتھ لوگ زیادہ ویڈا میں سفر کرتے ہیں اور ویڈا خراب ہو گئی اور گورنمنٹ کو یہ نہیں کرے گی ویڈا کو سیٹ کر لیں۔ ان کو پہلے تو بنائی گئی تھی، پھر اب اس کو خراب ہو رہی ہیں تو اب اس کو بنا ہی نہیں رہے۔ جب سے وہ آلودگی تو مطلب سب کو بیمار ہی کرتی ہے نا، تو مطلب یہ گورنمنٹ ہماری سوچ ہی نہیں رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بری طرح متاثر ہونے کی وجہ سے ملتان آلودگی کے اعتبار سے ملک بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ویڈا بسوں کی مینٹیننس کے لیے لاکھوں روپے مختص کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ویڈا بسوں کی فٹنس نہ ہونا ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ شروع میں تو ویڈا وغیرہ آئی تھی صحیح تھی، لیکن اب بہت مسئلہ ہو گیا ویڈا کی وجہ سے۔ ویڈا پہلے بالکل صحیح تھی، اب اور دھواں چھوڑ دیا اور ٹریفک کا مسئلہ بڑھ گیا۔ دھواں چھوڑتی ہیں نا، اس کا جو انجن ہے ان سے فضول ہوئے پڑے ہیں، صحیح ہے، اور اتنی پولیوشن ہوتی ہے روڈز پہ، اس لیے ہمارے لیے جو ہے نا عوام کے لیے، ایون میں بھی ہوں تو مجھے بھی اسموگ سے نا الرجی ہوتی ہے۔ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کا مکمل خیال شہریوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہیلتھ پہلی پریورٹی ہے۔ اسی وجہ سے میرے حساب سے گورنمنٹ کو یہ اسٹیپ لینے چاہیے کہ پولوشن کا بندوبست کرنا چاہیے۔ شہریوں نے دھواں چھوڑی تمام گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ میاں والی میں اسموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد آئے روز بڑھنے لگی۔ ماہرین نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا۔ میاں والی میں اسموگ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد آئے روز بڑھنے لگی۔ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ خان کا کہنا تھا کہ اسموگ خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بڑی تعداد میں اسموگ سے متاثرہ افراد ہسپتال آ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر نزلہ، زکام، گلے کی الرجی اور آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ آنکھوں کے امراض، جس میں کنجکٹیوائٹس، اسکلیرائٹس، آنکھوں کی اریٹیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ناک کی اریٹیشن، الرجی اور چھینکیں آنا زیادہ، اور گلا خراب، کھانسی، ریشہ، بخار، اور خاص طور پہ وہ مریض جو پہلے سے کسی بیماری میں سانس کی مثلا دمہ یا COPD یا اسما والے پیشنٹ ہیں، تو ان کے لیے تو یہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس میں ان کی ایک تو امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ان کے یہ جو سیزن ہے اور یہ جو اسموگ ہے، اس کی وجہ سے یہ مرض بڑھنے کا، اسما کا ایکیوٹ اٹیک ہونے کے خطرے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کلیم اللہ خان نے ہدایت کی کہ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بلا وجہ گھروں سے نہ نکلیں، موٹر سائیکل سوار ماسک اور چشمے کا استعمال کریں، ٹھنڈے پانی کا استعمال ترک کیا جائے۔ ہماری جو کارخانے ہیں ان کے اندر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانا، دھوئیں، مٹی، گرد غبار سے بچانا اور گاڑیوں کو کنٹرول کرنا۔ دوسرا جو اپنے لیول پہ ہم لوگ کام کریں کہ ہم غیر ضروری سفر نہ کریں، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اس موسم میں۔ حکومت جہاں اسموگ کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، وہیں پر شہریوں کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، وگرنہ اسموگ سے محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ کیمرامین شہزاد اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث اسکول جانے والے طلبہ کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسموگ نے ملتان شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث اسکول جانے والے طلبہ کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسکولوں میں طلبہ کو ماسک پہننے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اسکولوں میں روک تھام کے حوالے سے یہی کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو ماسک لگا رہے ہیں، اور انہوں نے یعنی پھرنا نہیں ہے، باہر ذرا نہیں نکلنا، بریک ٹائم ہی نکلتے ہیں باہر۔ اور جیسے ہی آرڈر آیا تھا گورنمنٹ کا کہ آپ بچوں کو ماسک، بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارے اسکول میں بچے جو ہے وہ ماسک، میکسیمم بچے جن کو کوئی سانس کا پرابلم ہے یا کوئی کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، تو وہ آلریڈی ہی
मास्क जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तालिबात का कहना था कि क्लास रूम्स में पूरा वक्त मास्क लगा कर बैठते हैं। स्मोक की वजह से आंखों में इन्फेक्शन के साथ स्किन इन्फेक्शन भी हो रहा है। जब हम आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक होती है, जिस वजह से हमें सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है, और जब हम क्लास में बैठते हैं तब भी हम मास्क लगा कर ही बैठते हैं ताकि हम स्मोक का जो एयर पोल्यूशन है वो हम पर इफेक्ट ना हो। क्लासरूम में भी ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही बैठ के हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। आपको पता है कि स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमार हो रहे हैं। स्मोक की वजह से सांस भी नहीं लिया जाता सही तरीके से, आइज़ में भी इचिंग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इकदाम करे। तुलबा और असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, सरगोदा में भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डेडलाइन खत्म होने के बाद शहर से 443 अफगानियों की वापसी के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। सरगोदा इंतजामिया गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों की वापसी के लिए इन एक्शन। आज खुद वापसी की डेडलाइन खत्म होने के बाद बगैर दस्तावेजात रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पहले मरहले में 114 शहरियों को अफगानी होने के शुबा में होल्डिंग बेस कैंप लाया गया। गैर कानूनी अफगान महाजरीन को होल्डिंग बेस कैंप में बतौर मेहमान रखा गया है, जबकि शनाख्ती दस्तावेजात फराहम करने वाले 105 अफराद को नादरा तस्दीक के बाद छोड़ दिया गया। दीगर 434 गैर कानूनी अफगान महाजरीन की तलाश के लिए पुलिस और FIA मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों के कवायद चेक कर रहे हैं। शनाख्ती दस्तावेजात फराहम न करने वाले अफगानियों को FIA से हदायत मिलते ही बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। नईम खान, रोही, सरगोदा। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया की अदम तवज्जो। रेलवे स्टेशन पर नस्ब इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना हो सकी। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को फाल करने के बजाय कवर लगाकर ढांप दिया गया। रेलवे मुल्तान डिवीजन इंतजामिया की अदम तवज्जो। रेलवे स्टेशन पर लगाई गई इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना हो सकी। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को फाल करने की बजाय कवर लगाकर ढांप दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल ना होने पर मुसाफिर रेलवे इंतजामिया से नाला। पाकिस्तान रेलवे के तमाम रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनें नस्ब की गई थी। इसका मकसद था कि मुसाफिर खुद ही ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकें। मुसाफिरों का कहना था कि आवाम का करोड़ों रुपया टिकट मशीनों पर और स्क्रीन पर लगाया गया है। तकरीबन मतलब ये 20 दिन या 22 दिन से पहले ये लगाई गई थी, मतलब लोगों की सहूलत के लिए। बाज़ औक़ात ये होती है कि मतलब ट्रेनें पहुंच गई होती है तो रश की वजह से आवाम मतलब टिकट ले नहीं पाती है, या तो क्या ट्रेन क्या पास हो जाती है पहले से, या रश की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात होती है। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब किए 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक फाल नहीं किया गया। ये मशीन फाल हो जाए तो टिकट बुकिंग ऑफिस से रश खत्म हो जाएगा। 20 दिन हो गए ये लगाया था इन्होंने। इससे मतलब ये फायदा था कि खुद जो पैसेंजर है वो खुद आके यहाँ टिकट बुक करवा सकता था, जिसकी वजह लाइन में नहीं लगना पड़ता था। लेकिन ये अभी तक कोई इस पे अमल दरामद नहीं हुआ। जब से लगी है तो कोई इसका मतलब हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया और आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन को फौरी फाल करवाया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बहावलपुर में सियाहत को फरोग देने के दावे ठुस हो गए। शहर में साइट सीइंग बस सर्विस 7 माह बाद भी ऑपरेशनल ना हो सकी। TDCP बहावलपुर में सियाहत को फरोग देने के दावे पूरे करने में नाकाम। शहर में साइट सीइंग बस सर्विस 7 माह बाद भी ऑपरेशनल ना हो सकी। शहरी बस की मौजूदगी से भी लाइलम निकले। बस 7 माह के दौरान सिर्फ 20 टूर्स ही कर सकी। TDCP रीजनल इंतजामिया ताहाल बस को हफ्ता में 1 दिन चलाने में भी नाकाम है। शहरियों का कहना था कि बस बहावलपुर शहर के अलावा किला दिरावट, पोश शरीफ, लाल सुहानरा, हेड इस्लाम जैसे मकामात पर भी जा सकती है। तकरीबन 7 माह से खड़ी है, ये कुछ भी नहीं किया इंतजामिया ने, सिर्फ मुफ्त की तनख्वाह ले रही है। 7 माह में बैठ गए। गुजारिश है कि हमारे इंतजामिया को इसके बारे में कुछ हल किया जाए। बहावलपुर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ ये बस जाए, टूर जाए, इन्हें दिखाए, बहावलपुर के शहरियों को ले जाए, जैसा कि नूर महल हो गया, गुलजार सादिक हो गया, चिड़ियाघर हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी IUB हो गई। इनको चाहिए कि वहाँ ले जाएं। साइट सीइंग बस की चोलिस्तान में विंटर टूरिज्म से पहले भी बुकिंग न हो सकी। कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर बस को 7 माह पहले रावलपिंडी से लाया गया था। शहरियों ने शिकवा किया कि बस सिर्फ खास मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। रीजनल डायरेक्टर TDCP का मौक़िफ़ है कि बस को चलाने में मुश्किलात का सामना है। वीकेंड पर शेड्यूल बन चुका है। बस को जल्द शहर से बाहर भी सियाती मकामात पर लेकर जाया जाएगा।
अब ये रोजाना की बुनियाद पर उनकी इंस्ट्रक्शन है। अब टूरिज्म का भी यही है स्कोप है कि इसको हम बेहतर से बेहतर करें और रोजाना चलाएं। तो अब ये हर हफ्ता और अतवार 4:30 बजे शाम को यहाँ टर्मिनल से नूर महल के लिए जाया करेगी। वैसे हमने इसके लिए 2 टूर डिज़ाइन किए हैं। एक टूर इसका हमने DHM के लिए रखा हुआ और एक हम लाल सवारना का भी किया हुआ। लाल सवारना में थोड़ी सी बात ये आ रही है कि वहाँ पे कुछ तारें जो हैं बिजली के वो नीचे आई हुई हैं और दरख्तों की ट्रिमिंग चाहिए। साइट सीइंग डबल डेकर बस सर्विस का ऑपरेशनल न होना बहावलपुर और चोलिस्तान में विंटर टूरिज्म की दावेदार इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर तजावुजात की भरमार, सड़क पर जुमा बाजार सज गया, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, शहरी परेशान है, मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन अमला खामोश तमाशाई बन गया। मुल्तान शहर की बड़ी शाहराह पर तजावुजात माफिया ने कब्जा कर लिया। सड़क के चारों अतराफ जुमा बाजार लगाकर कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला तजावुजात रोकने में मुकम्मल नाकाम नजर आता। सड़क के दरमियान रेहड़ी बान और लंडे वालों ने नाजायज कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इतने रश में हम बच्चे फैमिली के साथ जब निकलते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, बाद को हादसा भी हो जाते हैं। इसको चाहिए गवर्नमेंट को कि इन चीज़ का ख्याल रखे ताकि इनका कोई अलहदा इंतजाम करे, ताकि ये अगर यहाँ पे लगेंगे तो जाहिर है हम बूढ़े बुजुर्ग हम जैसे बंदे भी परेशान हो जाते हैं। शहरियों का कहना था कि यहाँ पर जुमा बाजार की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, गुजरना मुश्किल हो गया। इलाज का सामना करना पड़ता है हम, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हमारा आना जाना होता है, कभी हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कभी अकेडमीज जा रहे हैं, लेकिन इतनी ट्रैफिक और बदतरीन ट्रैफिक जैम होती है, बंदा आधा घंटा तो हम बाइकों में खड़े रहते हैं। पेट्रोल आपके हम सामने है कि कितना महंगा हो गया है, मतलब बाइक स्टार्ट रहती है, गाड़ी स्टार्ट रहती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सड़क क्लियर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। दुनियापुर म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत या फिर नाअहली, शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। शहर की मुतअद्दिद सड़कों पर सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी जमा रहने लगा। दुनियापुर में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी, अरसा दराज से सीवरेज लाइनों की सफाई सुथराई नहीं हुई, जिसकी वजह से शहर भर का सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया है। शहर के मुतअद्दिद मकामात पर सीवरेज का ताफुन ज़दा पानी सड़कों पर जमा रहने लगा। बदलते मौसम के साथ ही मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा रहने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों का कारोबार भी खत्म होकर रह गया है। राहगीरों और दुकानदारों का कहना था कि म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके 20-25 दिन हो चुके हैं, ये पानी और मच्छर इस तरह, और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सारा बीमारी की हालत में बीमार हो जाते हैं बच्चे। ये गंदा पानी और मच्छर 20-25 दिन से यही हालत है सर। सुबह सुबह बच्चे जब स्कूल का रूटीन का रश होता है, बच्चे आते जाते हैं तेजी से, मोटरसाइकिल, नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं। सर हमारी तो दुकानदारी खराब हुई पड़ी है। और आप देखें 10-10 फुट की हदूद में पानी आया पड़ा है। 3-4 दफ़ा हमने गाड़ियों को भी कहा है कि पानी, म्यूनसिपल कमेटी को भी कहा है ये गाड़ियाँ आप इकट्ठी कर लें, उनका कभी गाड़ी ख़राब है, कभी क्या मसला है। अब ये 6-7 दिन से मुसलसल ज़्यादा पानी खड़ा है। आपके सामने पोजीशन है सर, मेहरबानी करें हमारी सीवरेज को सही किया जाए। राहगीरों और दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर के सीवरेज मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब, ताहिर, रोही, दुनियापुर। अब आपको बताएं, ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल करें, चश्मा लगाएं और मास्क पहने। बस्ती मलूक मोटरवे पुलिस ने स्मोक आगाही मुहिम शुरू कर दी। बस्ती मलूक मोटरवे पुलिस बीट नंबर 19 ने स्मोक आगाही मुहिम शुरू कर दी। अफसरान ने शहरियों को स्मोक के दौरान हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई। DSP मलक एहसानुल हक का कहना था कि ड्राइवर हजरात फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने, चश्मा लगाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। रोड के साथ जो फसलों की बाकियात को जलाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, उनको मौसर ब्रीफ किया जाता है। बाकी जो ट्रैफिक के हवाले से ऐसा होगा कि स्मोक में विजिबिलिटी कम हो जाएगी, तो उस लिहाज से जो मोटरसाइकिल सवार हैं हेलमेट का इस्तेमाल करें और बिल्कुल पहले तो सफ़र से इज्तनाब करें जब इस सिचुएशन में, क्योंकि व्यू बहुत क्लियर नहीं होता तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। मोटरवे पुलिस का कहना था कि शहरियों को कानून पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां महफूज बनानी चाहिए। कैमरा टीम के हमरा मिर्जा जमील, रोही TV, बस्ती मलूक। दरख्त जिंदगी हैं। खानेवाल में पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में शजरकारी मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात ने भी पौधे लगाए। माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए दरख्त अहम किरदार अदा करते हैं। खानेवाल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज खानेवाल में शजरकारी मुहिम के तहत 2000 पौधे लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियात सरफराज अंजम का कहना था कि पौधे लगाना हर शख्स की जिम्मेदारी है। आज 500 से ज़ायद पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें फ्रूटिंग ट्रीज़ भी हैं, जिसमें ग्रीन ट्रीज़ भी हैं
اور یہ یقیناً ماحول دوست پودے ہیں اور ان سے ہمارے جو آکسیجن جو ہے اس کی پیدائش ہوگی زیادہ، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کا اخراج جو ہے وہ کم سے کم ہوگا، اور جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کا کلا کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے۔ اسکول پرنسپل راشد سعید رانا کا کہنا تھا کہ سرسبز ادارے بچوں کی تعلیمی صلاحیتوں پر اچھے اثرات چھوڑتے ہیں۔ اسکول کے اطراف میں پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو انوائرمنٹل پولوشن ہے، سموگ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول کو جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی بنانا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ جو ٹریز ہیں، درخت ہیں، یہ ہمیں سورس دی ہے۔ اس کو جتنا لگائیں گے فضا کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو پولوشن ہے، اس کو یہ ابزارب کریں گے، جذب کریں گے، اور ہمیں فریش ایئر آکسیجن جو ہے نا فضا میں ریلیز کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر نے بھی پودے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحول کو انسان دوست بنانے کے لیے ہر شخص اپنے حصے کے 2 پودے لگائے اور ان کی نشو و نما کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانیوال۔